Assalamu alaikum and welcome to the Offside Show on A Sports HD and ARY Zap. मैं हूं हैदर अजहर and we welcome you to our exclusive transmission for the FIFA World Cup 2022. अगले 30 दिन दुनिया की टॉप 32 टीमें मुकाबला करेंगी to see who ends up becoming the champion of the world. बहुत बड़े-बड़े नाम हैं फुटबॉल के जिनका ये आखिरी वर्ल्ड कप होगा. Will they be able to write their legacy? Will they go down in history as the greatest ever? इस पे हम बात करेंगे और हर मैच के प्री मैच और पोस्ट मैच एनालिसिस के साथ The Offside Show की टीम आपके सामने हाजिर होगी. इससे पहले कि मैं आगे चलूं, I need to introduce this wonderful panel that we have over here and I'll start off with the star of the show. This person is an inspiration for athletes, not just female athletes, but athletes across all sports, across all genders. Ladies and gentlemen, the former captain of the Pakistan women's team, the first footballer to sign for a foreign league and play in a foreign league. इनके इतने Guinness Book of World Records हैं कि इन्हें खुद भी नहीं पता. And a personal hero of mine, Hajra Khan. Hajra, thank you so much for joining us. क्या हाल है आपका? I'm great, even better now with that introduction. Thank you, Heather. Pleased to be here and really excited to see how this World Cup is going to unfold. मैंने आपका इसलिए भी ज़्यादा इंट्रोडक्शन देना है क्योंकि बाकी दोनों के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं कहने के लिए. जस्ट किडिंग. हमें ज्वाइन किया है दो टॉप स्पोर्ट्स एनालिस्ट ने. I'll start off with the first one who happens to be one of the best sports analysts in the country. उन्होंने अपना फुटबॉल से ही आगाज़ किया था as far as sports writing is concerned. This is now going to be his third World Cup transmission. हमारे साथ मौजूद है रेहानुल हक. रेहान, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक. Really excited about the World Cup and the sport that I love. The sport that we all love. और ladies and gentlemen, I'm going to introduce our special guest, जिनका जब हमने सोशल मीडिया पे शेयर किया कि ये भी हमारे पैनल पर होंगे तो पूरी दुनिया ने सबसे पहले ये इस बात की एक्साइटमेंट दिखाई कि ये वापस स्क्रीन पर आ रहे हैं. To say that he's an expert on everything will be an understatement. Ladies and gentlemen, the great Emir Naqvi is here. Emir, so good to have you back on screen. लियोनेल मेसी. मैं चाहता था कि मेरे वर्ल्ड कप का आगाज़ लियोनेल मेसी से हो और इख्तिताम लियोनेल मेसी से हो. लेकिन अगर लियोनेल मेसी ने बाद में एकदम से कहा कि नहीं मैंने एक वर्ल्ड कप और खेलना है तो फिर एमर नकवी का भी एक वर्ल्ड कप और हो जाएगा. वो तो आप जानते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल है कि जब तक लियोनेल मेसी वर्ल्ड कप खेल रहा है मुझे टीवी पे आना ज़रूरी है. नो सरप्राइजेस हियर टू कि एमर की फेवरेट टीम कौन सी होगी इस वर्ल्ड कप में. और अब हम कोशिश करेंगे कि आपको आज प्रीव्यू दें. हमने पहले प्लान किया था कि आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस दें ऑफ ईच एंड एवरी ग्रुप, बट then we realized कि हर मैच डे पर we'll get an opportunity to talk about those specific groups. तो आज हमने कोशिश की कि just to start off, just to kick off the proceedings, हम बात करेंगे of the top 9 teams जो हमारी पैनलिस्ट के मुताबिक इस वर्ल्ड कप की कंटेंडर्स हैं. And we will start off क्योंकि again अवामी शो करना है तो we will start off with the team that everyone wants to talk about and it is England. Rehan, is it going to come home? No. पता नहीं कहाँ सुना था मैंने ये बात, but go on. But like it's coming home starts from Euro 96. तब से वो कह रहे हैं it's coming home. Although I feel कि जो current English generation है इसको उतना credit नहीं मिलता जितनी उनकी golden generation को मिलता था कि यार they underachieved and all, but this English generation is actually good. But the problem is कि 2018 में they were a team that was getting to their full potential and they weren't there yet, reached the semi-final, then Euro के final में हारे. अब 2022 में बहुत ज़्यादा expectations है, but the football they've played over the last 6-7 months has been woeful. Other than that Germany game where they showed some spark, they are a team with so many offensive players and Southgate ऐसे कभी-कभी लगता है कि the team is playing with the handbrake on. So if England can free that up and maybe bring in more of people like Foden into the fold, then they might be contenders, but they will find a way to shoot themselves in the foot. कितनी कमाल बात की उन्होंने उस बंदे की बात की जैसे गैरेथ साउथगेट ने स्टार्ट कराना ही नहीं है. लेकिन हाजरा अगर खिलाया लेकिन हाजरा 2018 की बात करते हैं क्योंकि 2018 का जो वर्ल्ड कप था वो गैरेथ साउथगेट के लिए और इस जनरेशन के लिए मतलब इट वाज everyone felt that World Cup came a bit too soon for them and they will peak this year. Do you think that this generation has
reach that potential that was expected of them? I think possibly because we saw a glimpse of that in the Euros. You know, they played fantastically. They have a very attacking lineup, and then you know, obviously, runners-up at the Euros. You know, we have some big names, some really big names, some attacking football. You know, we have Luke Shaw played on the left. We have Harry Kane, who was Golden Boot for the Euros. So we do have some names, some players to look out for. But then I think all in all, it would only make a difference if. Basically, Southgate, let's go off the handbrake. मतलब वो उन दोनों को तो क्लियरली पता चल गया कि साउथगेट से कितनी मोहब्बत है इन्हें। एमर, मैं यहाँ पे एक और बात करना चाह रहा हूँ थोड़ा सा ओवरऑल इस ग्रुप को लेके, क्योंकि जब आप देखते हैं ना एज ए न्यूट्रल देख रहे होते हैं तो ये ग्रुप आपको बड़ा फैसिनेट करता है। अगर आपको ज़्यादा फुटबॉल के बारे में इल्म नहीं है तब भी आपको ये ग्रुप बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है, बिकॉज इंग्लैंड विल हैव ईरान इन देयर ग्रुप, दे विल हैव अ यंग यूएसए टीम, एक ऐसी यंग यूएसए टीम जिससे वो तवक्कुआत हैं जो इंग्लैंड से थी 2018 में। आई मीन कमाल अटैकिंग फ्लेयर इस टीम का, एंड यू नो अगेन अ टीम दैट इज़ येट टू हिट इट्स पीक, एंड देन दे हैव देयर ट्रेडिशनल राइवल्स वेल्स एज वेल, जिसके अंदर पूरा 4 साल कुछ करे ना करे गैरिथ बेल और रैमजी इंग्लैंड के खिलाफ या वर्ल्ड कप में दे या बड़े इवेंट में दे शो अप। सो हाउ डू यू सी दिस ग्रुप एंड डू यू थिंक इंग्लैंड विल मेक आउट ऑफ दिस? देखिए, थोड़ा सा अगर आप मुझे वक्त दें और बुरा ना माने तो मैं जब यूनिवर्सिटी में लाहौर में पढ़ता था तो हमारे ना साल में हर साल एक ट्रिप होती थी, मई में हुंजा वगैरह ले जाते थे। तो सितंबर से ही लोग कहने लगते थे कि यार जब मई की ट्रिप होगी ना तो हम मोटरवे पे मियाँ जी की दाल खाएंगे। ओह क्या दाल है यार, मियाँ जी की दाल। वो लोग क्रेजी हो रहे हैं, ये पूरा साल हाइप हो रहा है, और फिर आप मियाँ जी की दाल खाते हैं लाइक दिस इज इट, वी टॉक्ड अबाउट दिस द होल ईयर। और इंग्लैंड की फुटबॉल टीम भी ऐसी मियाँ जी की दाल होती है कि आपको इतना सुनने को मिलता है उसके बारे में, आप समझते हो वाह ये क्या ज़बरदस्त चीज़ होगी, एंड इट्स यूजली प्रीटी डिसअपॉइंटिंग। आई थिंक अमेरिका की भी ऐसी तवक्कुआत है मेरी कि वो एक आपकी एक बोरिंग ढाबे की दाल होगी। ईरान और वेल्स से मुझे ज़्यादा तवक्कुआत है, क्योंकि एटलीस्ट मतलब उनकी दाल में थोड़ा तड़का तो है ना कि वो आप इन्जॉय तो कर सकते हैं। बाकी दो, और अमेरिका और इंग्लैंड मतलब उनकी फ़ुटबॉल के बारे में बात करना थोड़ा मेरे ख्याल में कानूनी तौर पे भी सही नहीं है। हमें मूव ऑन कर लेना चाहिए, हमें वाकई में मूव ऑन कर लेना चाहिए। लेकिन आपको इससे पता चल गया होगा, आपने जब वर्ल्ड कप प्रीव्यू शो सोचा होगा आपने बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि मियाँ जी की दाल की बात होगी। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसी तड़के के लिए अहमद नकवी इज़ हेयर विद अस। वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और टीम्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अहमद ने ऑलरेडी तड़का लगा दिया है। तो हम भी फिर कॉन्वर्सेशन लियोनेल मेसी की टीम से स्टार्ट करेंगे वंस वी गेट बैक। देखते रहे ए स्पोर्ट्स HD, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू द ऑफसाइड शो ऑन ए स्पोर्ट्स HD एंड ARY Zap। ब्रेक में जाने से पहले अहमद नकवी ने कहा कि इंग्लैंड की टीम मियाँ जी की दाल की बराबर है, तो हम इस वक्त उन्हें we'll put him on the spot and we'll talk about his favorite team. नहीं, it's not his favorite team, his favorite person on the whole planet, लियोनेल मेसी। क्योंकि अर्जेंटीना का जो ग्रुप है, अर्जेंटीना का ग्रुप वैसे तो काफ़ी हद तक स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है, लेकिन it has the potential to at least throw some surprises at Argentina. ग्रुप को पहले देख लेते हैं, अगर हम अपने सामने रखें, you can actually see the group over here. Group C, Argentina has Saudi Arabia there, मेक्सिको एंड पोलैंड, जहाँ पर सऊदी अरेबिया के खिलाफ तो तवक्कुआत होंगी कि दे विल विन ईजिली। इट इज़ गोइंग टू बी द अदर टू टीम्स विच कैन पोटेंशियली कॉज अ हिकअप। क्या मैंने बात सही की है अहमद नकवी या नहीं? हैदर, आपने कभी कोई गलत बात ही नहीं की है। ये तो मतलब बिल्कुल ऐसा सवाल पूछ रहे हैं आप। मगर नहीं, बिल्कुल आई थिंक कि अर्जेंटीना की टीम, एक तो पहले आई थिंक एक थीम मैंने इस्टेब्लिश कर दी है कि हर टीम किसी खाने के साथ कंपेयर कर रहा था मैं, और अर्जेंटीना की टीम इज़ ऑब्वियसली बिरयानी, राइट? और बिरयानी इज़ लाइक द बेस्ट, बट आपको अक्सर बुरी बिरयानी भी मिल सकती है। एंड लाइक आई थिंक अर्जेंटीना की जो आप टीम को, जैसे 2014 का जो वर्ल्ड कप था, सो you had a pretty lot of mediocre biryanis across the way to the final, right? But मतलब वही है कि जो उसकी पीक है उससे बेहतर कोई चीज़ ही नहीं है। थोड़ी सी फुटबॉल में भी बात कर लेते हैं।
मैं कह रहा हूँ थोड़ी सी फुटबॉल पे कॉन्वर्सेशन कर लेते हैं। रेहान, जो अगर एक अर्जेंटीना का वीक एरिया नज़र आ रहा है, वो क्लियरली नज़र आ रहा है कि होल्डिंग मिडफील्ड उनकी इस वक्त को आई मीन यू डोंट सी एनीवन देयर, और उसके अलावा एक वो वीक एरिया और दूसरा लेट्स बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, डी मिकेलिस शायद मेरे क्लास फेलो होते होंगे, नहीं, अभी तो ऑटोमेंडी शायद मेरे क्लास फेलो होते हैं और वो अभी तक खेल रहे हैं, सो आई मीन दैट कुड बी अ सिचुएशन देयर व्हिच कुड कॉज देम प्रॉब्लम्स। बट ऑटोमेंडी इज बेसिकली जो अर्जेंटीना को कवर मिलता है ऑटोमेंडी से, इट्स बिकॉज रोमेरो इज प्लेइंग विद हिम, एंड सारा जितनी भी अर्जेंटीना का सक्सेस है 36 गेम्स अनबीटन नाउ in all competitions, that comes from that partnership. It's not just the goals they are scoring, it's how good they've been defensively. और जो आपने defensively बात की midfield की, Rodrigo de Paul is their most important player. वो जो अहमर मेसी की बात कर रहा है, one of the reasons Messi has excelled under Scaloni is because de Paul basically उसके साथ ही दोनों turn towards the right hand side, और जब दोनों right की तरफ जाते हैं तो as soon as Messi loses the ball, Rodrigo de Paul का काम है कि वो ball फौरन recover करके and then they press up high and then they can break from high up. So that's basically the main thing that they have to do in this World Cup. But 36 games unbeaten, beating Brazil in Brazil to win the Copa America, you have to consider them one of the favorites. They are the favorites, aren't they, Hajra? Well, they're biryani apparently. Biryani is the favorite. बिरयानी इज द बेस्ट। लेकिन फिर चक्कर ये ना कि इस बिरयानी के अंदर आलू पे सवाल ना खड़ा हो जाए ना, फिर आई मीन दैट्स गोइंग टू बी अनदर क्वेश्चन यहाँ पे। आप ओपिनियंस ना दें बिरयानी। मैं बिल्कुल नहीं देता। मैं लाहौर से हूँ, मैं बिरयानी पे ओपिनियन ना दूँ। लेकिन अर्जेंटीना इज वन ऑफ द टीम्स दैट इज फेवरेट टू गो फार इन द टूर्नामेंट, और ये लियोनेल मेसी का आखिरी वर्ल्ड कप है, एंड this will determine his legacy. I honestly think he doesn't need to do anything more after that Copa win, लेकिन तब भी pressure होगा on Lionel Messi. लेकिन इस वक्त अगर एक बात मैं बात करूँ यहाँ पे, हाजरा, लियोनेल मेसी को हमेशा जो ऑन पेपर पर अटैकर्स साथ मिलते रहे हैं, द सपोर्ट स्टाफ हैज़ ऑलवेज बीन ब्रिलियंट, बट दे फेल टू शो अप, और एटलीस्ट देव गॉन मिसिंग एट की मोमेंट्स इन बिग टूर्नामेंट्स। हिगुआइन हो गए, अगुएरो हो गए, इस वक्त दे हैव लोटारो मार्टिनेज देयर एंड डी मरिया, जिन्होंने इफेक्टिवली जुवेंटस के साथ प्री सीजन किया और अब पहुंच गए। तो आई मीन, डू यू थिंक मेसी हैज़ द सपोर्ट स्टाफ टू गो ऑल द वे? Well, like you said, you know, De Paul has been incredible behind Messi, and then we have Martinez now. So I feel like, as a football player myself, if I'm on field where my backing is good and the fourth is also good, and you know, if I, for instance, I will not call myself Messi, but for me, if I'm having a bad day, I'll call you Messi if that's what you want. I mean, that's fine, but go turn on. into a messy situation with everyone next to us, but let's not. Yeah, Romero in the back, they're holding the fort in the back, and in the front we have De Paul on the side and Messi in the front. I think the support is incredible. They've been playing, very compact football. They're together, they're gelling well. You can see it in the Copa America, 36 games unbeaten, and I think they just have to follow through. And I feel like, you know, your question why other players who are supporting Messi are not able to perform as well is probably they're under pressure. They're under the pressure. They're under pressure because, you know, when you're playing against, sorry, go on. No, go on. Obviously, when you're playing against teams, they're bigger. If they're not big either, you're playing with a star who you don't want, for him to look bad. That's my point of view, and I feel like that's, Emmer wants to add something. जी Emmer. हाँ, बहुत जल्दी एक और बात जो हुई, जो हाजरा ने की ना, सिर्फ अभी तो मेसी की जनरेशन है, बट मेरे ख्याल में कि क्योंकि फ़ुटबॉल का वर्ल्ड कप खेलती आजकल 32 टीमें हैं, मगर देखती पूरी दुनिया है, और बहुत सारे बाकी ममालिक के जो लोग होते हैं वो यूरोपियन टीम्स हमेशा जीत रही होती हैं, तो नॉन यूरोपियन टीम्स में ब्राज़ील और अर्जेंटीना 2 टीमें जो हमेशा दुनिया भर में मकबूल होती हैं। और आई थिंक मेसी के साथ साथ अर्जेंटीना के लिए वर्ल्ड कप में खेलना ख़ुद भी एक बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। ब्राज़ील के ऊपर भी पिछले एडिशंस में जो आपको नज़र आया था, तो आई थिंक वही ये दोनों टीमों का बिलखुसूस हमेशा जो आपकी तवक्कुआत होती हैं कि देर नॉट जस्ट प्लेइंग फॉर देयर ओन कंट्रीज बट ऑल्सो उनकी ग्लोबल सपोर्ट होती है, विच परहैप्स एड्स टू द प्रेशर। अच्छा, मैं यहाँ पर एक और बात करूँगा रेहान, एंड दिस विल प्रॉब्ली गिव मी अ सेगवे टू टॉक अबाउट अनदर थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट, एंड हाजरा मैं आपसे भी आपका ओपिनियन लेना चाहूँगा इसके बारे में। वो ये कि मेसी को हमेशा ये कहा जाता था कि जब भी वर्ल्ड कप ईयर होता था, सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन फॉर क्लब, you would see that his performances wouldn't be as consistent as you would see in the first half of the season. और ये कहा जाता था, और ये ओवरऑल भी क्रिटिसिज्म होती थी कि क्योंकि वर्ल्ड कप जून जुलाई में होता था, बाय दैट टाइम द प्लेयर्स वुड बी एग्जॉस्टेड, पता नहीं कितने मैचेस खेले होते थे, स्पेशली वो जो चैम्पियंस लीग भी खेल रहे थे। लेकिन अब
one of the unique things about this World Cup is it's taking place smack in the middle of the season, जहाँ पर ये सारे players pretty much are at their peak या injured है या peak पर है. तो how do you think that will impact the overall quality of the World Cup? आई थिंक पहली चीज़ तो ये कि वर्ल्ड कप का जो मेरे लिए एक पर्सनल वो था कि आप जब भी समर वर्ल्ड कप होता था उसमें एक चीज़ होती थी कि द मोमेंट्स दैट यू रिमेंबर द मोस्ट इज़ कि कोई किसी ने बहुत ही एग्जॉस्टेड टैकल मारा है और बंदा निकल गया है, कोई प्लेयर इतना थका हुआ है, उसकी इतनी क्वालिटी है कि उसने दूर से शूट मार दी कि लेट्स ट्राई दिस. तो मे बी यू वॉन्ट सी दैट इन दिस वर्ल्ड कप. मे बी इट विल बी अ मोर, इट वोंट बी एज हाई स्कोरिंग एज प्रीवियस वर्ल्ड कप्स बिकॉज I don't expect as many errors. Physically, players will be in peak condition. और हाजरा बेहतर बता सकते हैं when you're playing और शुरू स्टार्ट का सीजन हो एंड में हो तो फटीक का कितना फैक्टर होता है. बट आई विल डेफिनेटली मिस के वो जो 90th में रेड कार्ड है, किसी ने किसी की शर्ट खींच ली है, किसी ने पीछे से मुक्का मार दिया. Yeah, I'll Just miss that. frustrated out of their minds, like, just do something. Yeah, but seriously, I mean, the timing of this World Cup, I mean, as a professional footballer, smack in the middle of the season, पहली बात तो ये कि मुबारक हो आपको 8 साल बाद आपकी इंटरनेशनल फुटबॉल बहाल हुई है, बट उस पर हम आगे चल के कॉन्वर्सेशन करेंगे. लेकिन I mean, how do you think it would impact the preparations, एक तो preparations and overall quality of the game? Well, I think overall, when a player is preparing for a big tournament, the Olympics, or in this matter, the World Cup, it's always at the back of your mind that you have to stay fit. Now, when, like you just said, या तो injuries हैं या तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं. So I feel like the biggest factor to like watch out for would be getting injured or not getting injured at this point. You're in top performance, the performances are great, goals are great, whatever position you're playing, it's absolutely fantastic. But can you bring that same, performance from the season, notch it up a little bit and perform at the World Cup? I think that's the question maybe. And I think true athletes will prove that. True athletes will definitely prove that. वक्त हो रहा है ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, we'll talk about the defending champions France and how Didier Deschamps is likely to fare this year. देखते रहे The Offside Show. We'll be right back. Welcome back to The Offside Show on A Sports HD, पाकिस्तान का पहला HD स्पोर्ट्स चैनल एंड ARY ज़ैप. ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे अर्जेंटीना की. अब चलते हैं डिफेंडिंग चैंपियंस फ्रांस की तरफ, क्योंकि आप अगर एक कैजुअल फुटबॉल फॉलोअर भी हैं तो आपको वो यही लगता है कि जो इस वक्त फ्रांस की टैलेंट नर्सरी है वो रोज़ कोई नया खिलाड़ी प्रोड्यूस कर देती है. एंड इट्स सच एन अमेजिंग स्क्वाड कि डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके बहुत ज़्यादा खिलाड़ी इस वक्त इंजर्ड हैं. पॉल पॉगबा हो गए, अंगोलो कांते हो गए, उसके अलावा नकुंकू बिल्कुल 2 दिन पहले इंजर हो गए. डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट, it is fair to say that they are the favorites going into this World Cup. और रेहान, ये सारा कुछ is because of their wonderful manager, that is Didier Deschamps. Your thoughts? They win despite him, not because of him. ठीक है. इतनी I do not think आपको इतनी अच्छी इंटरनेशनल टीम मिलेगी. सो बेसिकली क्लब फुटबॉल में क्या होता है, अगर आपके पास राइट बैक नहीं, आप राइट बैक खरीद लोगे. इंटरनेशनल फुटबॉल में होता है कि आपके पास हर पोजीशन के लिए एक कभी आपके पास 3-4 अच्छे राइट बैक आ जाते हैं. फॉर एग्जांपल आप इंग्लैंड की टीम देखें तो ट्रिपियर, रीस जेम्स एंड काइल वॉकर, वो सब इतने ज़्यादा राइट बैक हैं उनके पास, पर उनके पास किसी जगह पे मिसिंग होगा. फ्रांस की इतनी डेप्थ है कि अभी आपने कहा कि उनके प्लेयर्स इंजर हुए हैं, तो हु इज़ रिप्लेसिंग कांटे इज़ चोमेनी, who is one of the best players for Real Madrid this season, one of the best players in Europe last season. Isn't Youssouf Fofana replacing him? No, Fofana is replacing Pogba. अच्छा, okay. He plays for Monaco. तो Fofana यानी रिप्लेसमेंट नहीं, वो स्क्वाड में पहले ही थे. पर इसमें मुझे फ़नी चीज़ ये लगी कि डेशॉम्प्स ने वर्ल्ड कप से पहले स्क्वाड अनाउंस होने से पहले कहा आई प्रेफर अगर 18 मैन स्क्वाड हो, बिकॉज मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं. तो अब ऐसा हो रहा है कि जितने प्लेयर वर्ल्ड कप पे गए भी हैं, आपने कांटे और पॉगबा की बात की, तो उसके बाद उसके 2 और प्लेयर इंजर हो गए हैं. एंड ही स्टिल इज़ दी ओनली टीम दैट टुक 25 प्लेयर्स, उसमें 2 इंजर हो गए, अब 23 रह गए हैं. एंड नाउ ही वांट्स मोर प्लेयर्स. बट इफ़ यू लुक एट देयर बेंच एंड इवन आप उनके बाकी प्लेयर्स देखें, डेम्बेले माइट नॉट इवन स्टार्ट, लाइक ही इज़ बीन वन ऑफ बार्सिलोनाज मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर्स दिस सीजन. एंड द ऑप्शंस दे हैव इन डिफेंस, जूल्स कुंडे जैसा प्लेयर जो आप किसी भी दुनिया की टीम को देंगे तो दे विल सडनली become even better than they are, and he doesn't get a place in the starting 11 of France. एक और इंजरी जो मैं बताना भूल गया वो प्रेस्टल किम्पेम्बे की है, बिल्कुल अगेन सो क्लोज टू द स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप. इनका भी ग्रुप हम सामने रख लेते हैं. हाजरा रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रुप फॉर फ्रांस. मतलब अगर हम उसे देखें स्क्रीन पर तो आई मीन इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट दे विल go through this with flying colors and completely dominate this group, क्योंकि Australia, Tunisia and probably Denmark would probably end up being the second team from this group, especially अगर आप उनके यूरो की परफॉर्मेंस को देखें. लेकिन मेरा यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है pertaining to their attack, क्योंकि करीम बेंजेमा राइट ऑफ
winning the Ballon d'Or. Yeah. लेकिन this first half of the season, he's gone completely missing. दूसरी बात ये कि don't you feel कि जब बेंजीमा होते हैं starting 11 पे, तो that would restrict Mbappe a little more because Benzema isn't going to move. Yeah. No, but I think the Griezmann in the back might be able to kind of like help out, help them gel in together just a little bit, because I think, like, I agree with you that that's when Mbappe falls short, when, you know, Benzema is starting and they have to kind of like try and make it work in the front, because we have an incredible group, set of players in the back holding the field, but Benzema and Mbappe, two of the top strikers in the world right now, followed by Griezmann, who was excellent in the Euros also. I think they just have to make it work now. We have a lot of substitutes anyway, so if Benzema is not working, we might just as well put somebody else. एमर कितना अच्छा लगता है ना जब कोई इंटरनेशनल फुटबॉलर आपके साथ एग्री करे. मैं तो इसी बात पे खुश हो रहा हूँ कि मेरे साथ हाजरा एग्री करेंगे. लेकिन यहाँ पे भी जो चीज़ नोट करने वाली है वो ये है कि इस वक्त इनके काफ़ी ज़्यादा, I mean, when you talk about France football, you have to talk about all the scandals attached to it as well, right? I mean, this team just can't seem to get away from all the scandals. अभी भी कुछ ना कुछ ज़रूर चल रहा होगा, और कुछ नहीं तो बैकग्राउंड में PSG और एम्बापे का भी चल रहा होगा. आप एक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बहुत बड़े फ़ैन हैं जो भी बहुत ज़्यादा स्कैंडल्स के बावजूद सामने आती है. जो फ्रांस के फैंस होंगे उन्हें आप क्या एडवाइस करेंगे इस वक्त कि वो कैसे प्रोसीड करें, वो कैसे हैंडल करें इन स्कैंडल्स को और एक्सपेक्टेशंस को अपनी टीम से? कैसे हैंडल करें स्कैंडल्स को? आई थिंक आप दुआएं करें और क्या कर सकते हैं. क्योंकि देखिए फ्रांस की टीम था कि जिस मैंने आपसे कहा कि ऑब्वियसली हमारे पास फुटबॉल का एनालिसिस देने पहले से कुछ लोग हैं, तो मैं बाकी आवाम के लिए मैं बैठाया गया हूँ. तो आप जब नथिया गली जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक वो मिलती है पटाखा चिकन, ठीक है, एंड इट्स लाइक चिकन दैट्स कुक्ड विद लाइक साबुत मिर्च, a lot of साबुत मिर्च, and that amount of mirchi in one dish, it can go really wrong, and that's France for you, right? कि वो अक्सर जो है वो साबुत मिर्च ज़्यादा हो गई, आपका पेट ख़राब हो गया, नथिया गली ट्रिप इज़ ruined. But if it works out, there's no, I mean, एक और बात हैदर मैं कहना चाह रहा था कि फ्रांस की जब हम लोग ने ये जो इसका प्रीव्यू पढ़ रहे थे तो फ्रांस की टीम आप देखते हैं तो ऐसा लगता है आप पोस्ट कलोनियलिज्म का कोर्स पढ़ रहे हैं ना कि उसने एक कलोनियलिज्म वर्ल्ड 11 ऑल स्टार्स कलोनियल टीम एक बनाई हुई है, और तो उन्होंने हर जगह पूरी दुनिया का टैलेंट चुन के अपने पास रख लिया है. और एंड दैट्स वाई आई थिंक फ्रांस इज़ ऑलवेज सो कंपेलिंग टू वॉच, क्योंकि उनकी टीम में हमेशा अगर वो जैसे ड्रामा हो रहा होगा तो वो भी एक आपको वर्ल्ड कप में दिलचस्पी तो देते रहेंगे. एंड व्हेन दे एज दीज गाइस सेड कि डिशॉम्स के बावजूद जब वो थोड़ा अच्छा मैच खेल लेते, एक दफ़ा फिर पिछले वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना ने ही उनको उस लेवल तक लाए थे. फ्रांस इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीम्स टू वॉच फॉर गुड एंड बैड रीजंस. तो आई थिंक कि इस वर्ल्ड कप में भी हमें कुछ भी मिल सकता है. रियलिटी टीवी एट इट्स बेस्ट. और एमर ने बहुत ज़बरदस्त मैच याद कराया बिकॉज दैट हैज़ टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैचेस एवर प्लेड इन अ वर्ल्ड कप. वक्त हो रहा है ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक ग्रुप है जिसमें स्पेन भी है, जर्मनी भी है. वील ट्राई टू टॉक अबाउट बोथ दीज यूरोपियन जायंट्स, स्पेशली स्पेन, क्योंकि अंदर से रेहानुल्लाह के पास स्पेनिश पासपोर्ट है शायद, क्योंकि वो इतनी मोहब्बत करते हैं स्पेन से. तो वील बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. देखते रहें ए स्पोर्ट्स HD एंड ARY's ऐप. वेलकम बैक टू द ऑफसाइड शो. और अब हम बात करेंगे कुछ टीम को ज़रा हमें स्पीड अप करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास वक्त की किल्लत है. देयर इज़ अ लॉट ऑफ लाइव एक्शन फॉर यू ऑन ए स्पोर्ट्स HD एंड ARY's ऐप. Formula 1 भी है. सो वील ट्राई टू वाइंड अप दिस शो एज क्विकली एज वी पॉसिबली कैन, बट वी हैव टू टॉक अबाउट at least 3 of these big teams, right? So Rehan, I'm going to put you on the clock. Think of this as injury time. 1 minute each. Spain, go on. So Spain का I'm not going into details of players and how they play. Everyone knows how they play. The thing with Spain is कि every country thinks कि football best तरीका है मुल्क को unite करने के लिए. Spain में exactly opposite है. National team divides Spain unlike anything else. Madrid completely boycott किया उन्होंने Euro 2020 ये सोच के कि कोई Real Madrid का player नहीं गया. इस दफ़ा भी Luis Enrique is either loved or completely hated. No one in Spain right now knows कि TV rights किसके पास है World Cup दिखाने के लिए. That is how important they think the World Cup is.
So in Spain, if the national team does well, everyone owns it. If the national team doesn't do well, so they're like, this is not even our team. The Basques say ये हमारी टीम नहीं है, the Catalans say हमारी टीम नहीं है, and then Madrid वाले कहते हैं हमारी टीम नहीं है. It's as simple as that. ये इसी तरह का तबसरा मैं 1 मिनट में ले सकता था, क्योंकि अगर मैं लुइस एनरिके स्टार्ट कर देता ना यहाँ पर, तो रेहान का एक और रैंट स्टार्ट हो जाता कि जॉर्डी एल्बा और बुस्केट्स को उनके क्लब नहीं खिला रहे, लेकिन यहाँ पर लुइस एनरिके की टीम उन्हें डेफिनेटली खिलाएगी. हाजरा, जर्मनी इज योर टीम, गो. I've supported Germany for the past couple of years, and the last 2 big tournaments have been absolutely disappointing. And obviously, I think they've left the entire world, all the fans, a bit delusional with what they're going to come up with next. It's not looking good because I feel like they're like at an all-time low right now in terms of how they've been performing, which is not like a team. Their starting 11 is players who've mostly won the Champions League also. If they need to stick together, they're not sticking together, and it's been talk of town also. We have some great players, Mullers and Kimmich's a great distributor. We can talk about the technical stuff maybe the coming games, but I'm really hoping they pull through. Maybe like a miracle, something would be nice. बिल्कुल. एमर, ब्राज़ील, टाइम हमारा बहुत शॉर्ट है. ब्राज़ील कौन से बताएं आप? आपको मैं तीनों के देता हूँ. सबसे पहले ब्राज़ील है दाल चावल, ठीक है, पूरी दुनिया में मकबूल है. अगेन आप उसको बहुत ज़बरदस्त भी कर सकते हैं. इट कैन बी ऑल्सो वेरी डिफेंसिव एंड डावर. दे कैन डू इट एवरी विच वे, और हर दफ़ा वो काफ़ी आगे जाते हैं. मतलब दाल चावल किसी भी कॉन्टेक्स्ट में चलता है. नेक्स्ट जर्मनी, पुलाव क्योंकि पुलाव इज़ लाइक एनीवन कैन मेक इट, बट यू कैन ऑल्सो मेक इट रियली अमेजिंग. इट हैज़ अ रियली हाई फ्लोर, हाई सीलिंग, राइट? But I don't really like it that much, and I don't like Germany. Finally, Spain, lava cake. 10 साल पहले everyone was like, wow, lava cake's amazing. Now it's just a cliche, it's terrible, no one likes it. Thank you so much, Emir. Thank you so much, Hajra. Thank you so much, Rehan, for your analysis. ये था जी हमारा प्रीव्यू शो. मुझे नहीं पता कैसा था, लेकिन आपको कैसा लगा? अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा. सोशल मीडिया पे जाएं और हमारी टीम को टैग करें एंड डू गिव अस योर फीडबैक. आपको एक बार फिर बताते चलें कि 64 के 64 मैचेस आप लाइव देख सकेंगे ऑन ए स्पोर्ट्स HD एंड ARY Zap. We'll be bringing you all the action live from Qatar. कल ओपनिंग सेरेमनी है और साथ में कतर वर्सेस इक्वाडोर होगा. सो वील बी बैक विद यू विद अनदर शो, अनदर प्री मैच एंड पोस्ट मैच एनालिसिस शो. कल के तक के लिए हम सबको इजाज़त दें. टिल टुमारो, खुदा हाफिज़.